Good morning, student. This is exercise 3.1 of NCERT. We discuss only graphical and algebraical method. Aftab tell his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. In 2 lines, we are discussing Aftab and his daughter. After 7 years, he is talking before 7 years. 7 years ago means 7 साल पहले. I was 7 times as old as you were then. अगर हम इन दोनों की बात करें कि ये 7 साल पहले की बात करें तो फर्स्ट वी मेक द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ these two line. Now in this case they are not given age of Aftab and his daughter. Let the age of Aftab is x years and age of his daughter is y years. क्योंकि ये 7 years पहले की बात कर रहा है तो 7 साल पहले the age of Aftab is x minus 7 and age of his daughter is y minus 7. Now come to the question. He is saying that I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब कहता है कि मैं अपनी डॉटर के 7 टाइम्स, इट मीन्स क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब की एज क्या है x माइनस 7 और इसकी डॉटर की एज क्या है y माइनस 7. बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन 7 टाइम्स. क्या गिवन है आपको 7 टाइम्स. देन राइट हियर 7 इंटू y माइनस 7. वी विल मेक वन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस. This is x minus 7, 7y minus 49. This is x plus 7y. इधर आके minus 7y minus 49 minus 7 plus 7 हो जाएगा. And it will come minus 42. Then first equation is x minus 7y is equal to minus 42. Come to the next equation. In next equation he is saying after 3 years. 3 years from now. 3 साल बाद की बात कर रहा है. अगर 3 years from now की बात करें, 3 years from now, the age of Aftab is x plus 3. And you know that age of his daughter is y प्लस 3. क्योंकि 3 साल बाद की बात है और ये कहते हैं कि आई शिल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मीन सेम कि जो मैं हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं मीन्स x प्लस 3. x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 times. दिस इज गिवन 3 times. So 3 times as old as you. So this is the second equation come out from this expression. X plus 3 is equal to 3y plus 9. प्लस 3 है, इधर आके माइनस 3y हो जाएगा और 9 प्लस 3 उधर जाके माइनस 3. What will come? x minus 3y is equal to this. This is two equation. By algebraically we will solve by the method of elimination. We will discussing in next exercise. But in this case we represent the value x y graphically. ये algebraically expressions हैं. अभी हमें इनको किस में जोड़ना? Graphically. Good morning student. This is again exercise 3.1 question number 1. Already in previous class we discussed about the graphical method of question 1 how to solve. In come to the next class, this is the method algebraical method to solve the two variable linear equation. How to solve by algebraically. The first method is that elimination method, second is substitution method, third is a cross multiplication method. Elimination method is very useful to solving the two variable linear equation. We use also substitution and cross multiplication. If mentioned in a question, then we use the substitution and cross multiplication. Mostly we use the elimination method. So in this question we use elimination method. So what is the
how to solve the algebraical linear equation by the elimination. In this questions we learn about it. There is two equation. First is x minus 7y is equal to minus 42. You know that x minus 3y is equal to 6. In elimination method, by the word you know that eliminate करना होता है हमें किसी को, या तो हम x को eliminate करते हैं या हम y को eliminate करते हैं. किसी को भी eliminate करने से पहले हमें ये देखना होता है कि जो x के आगे आपका कोफिशिएंट है और दूसरा जो x है उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो क्या सेम है या नहीं है. अगर वो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनको एलिमिनेट कर देंगे. अगर वो सेम नहीं हुआ तो हमें उनको क्या बनाना होता है, इक्वल. इन दिस क्वेश्चन ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आपको इसमें समझाने कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे इक्वल किया जाता है इनका कोफिशिएंट. इन क्वेश्चन वेरी सिंपल, हम सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आपको राइट करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. How to subtract? 1 minus 2, this is your choice. जैसे x minus 3y is equal to 6, x minus 7y is equal to minus 42. When we subtract, the sign will change. जैसे प्लस है या माइनस हो जाएगा, या माइनस है या प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा. जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4y बचेगा, और 42 और 6 क्या हो जाएंगे आपके 48 हो जाएंगे. और यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये आएगा आपका 48/4, देन वैल्यू इज़ 12. तो आपने y की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू आपकी 12 आई है. y आपकी क्या थी, डॉटर आपने उस क्वेश्चन में माना हुआ था, तो आपकी डॉटर की जो एज है वो कितनी आ गई आपकी 12 ईयर्स. देन y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. से y इज इक्वल टू 12 गिवन है, पुट इन इक्वेशन 1, देन x माइनस 1, इक्वेशन 1 इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू यहाँ पे 12 है, माइनस 42, x यू नो दैट 12 7 जा x माइनस 84 is equal to minus 42. then you have find the value of x, minus 42 और plus 84, then x की वैल्यू आएगी आपकी 42. तो ये किसकी एज मानी हुई थी आपने, आफ्ताब की. तो you have find the value of x and y with the help of elimination method. This is your elimination method. Now come to the question number 2. Team buys 3 bats and 6 balls, 4 rupees 3,900. Later she buys another bat, 2 more balls of the same kind of from rupees 1,300. आपको ये क्वेश्चंस algebraically भी फाइंड करना है और ग्राफिकली भी फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी मेक द इक्वेशन, हम इक्वेशन बना लेते हैं. तो हाउ टू मेक इक्वेशन, आपको इसमें दोनों चीज़ें माननी पड़ेंगी. आपको बैट की भी कॉस्ट माननी पड़ेगी और बॉल की भी कॉस्ट माननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये 2 वेरिएबल है. तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट पहले गिवन है. बैट की क्या मान लिया आपने, रुपीज़ x. सेम थिंग, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल is rupees y. Come to the question. The cost of cricket team buy 3 bat. अगर कोई 3 बैट खरीदता है और एक की कॉस्ट x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एक बैट की कॉस्ट x है और आप 3 बैट खरीद रहे हो तो आप उसको कितना पैसा दोगे, 3x. और आप 6 बॉल खरीद रहे हो और एक की बॉल की कॉस्ट y है, तो आप उसको कितना दोगे, 6y. टोटल मिला के आपने उसको कितने पैसे दिए, 3,900. वेरी सिंपल, दिस इज योर इक्वेशन 1. ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई. कम टू द क्वेश्चन इक्वेशन और सेकेंड भी बनानी है हमें, तो आप सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ. सी बाय अनदर बैट 2 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड 4 रुपीज़ 1,300. वो एक बैट, अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदता है और 2 बॉल खरीदता है, और वो कितने रुपए पे करता है, 1,300. आपको पता है कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है, x, तो आप x लोगे. उसने 2 बॉल खरीदी हैं तो कितना पे करेगा, 2y. टोटल मिला के उसने कितना पे किया, 1,300. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2.
तो पहला जो है ये कहता है ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, तो पहले हम इसे ग्राफिकली शुरू करेंगे। तो ग्राफिकली हाउ टू सॉल्व, यू नो वेरी वेल। फर्स्ट वी मेक द इक्वेशन, मेक इट okay. Graphically how to represent these two equations, this is equation 1, this is equation 2. Come to the equation first. This is equation 3x plus 6y is equal to 3900. इस केस में हमें कैसे सॉल्व करना है, आपको टेबल के लिए क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक्स रख लो और वाई को दूसरी साइड भेज दो। 3900 माइनस 6y हो जाएगा, और x सिर्फ आप x रखो यहाँ पे 3900 माइनस 6y, बाई क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप टेबल बनाते हो तो आपको सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है और आपकी x की वैल्यू आती जाएंगी। आपको y की वैल्यू पुट करनी है तो y ऊपर रख लो, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम y की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे तो x की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। तो इन केस आप खुद ही समझ जाओ कि जब y इतना बड़ा, x बड़ा आ रहा है, इट मीन्स हमें y भी क्या लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, ताकि हमें ग्राफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप यहाँ पे 600 लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी। अगर मैंने y की वैल्यू 600 ली तो यहाँ पे 600 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि अगर मैं इसको 600 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3900 माइनस 600 बाय मल्टीप्लाई विद 6 तो 3600 आ जाएगा और बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 3900 में से माइनस करोगे तो 300 आएगा, और 300 बाय 3 आपका क्या आ जाएगा 100 में ही रखना है, 100 से कम नहीं करना। अब अभी आपने यहाँ पे 600 लिया था, आप यहाँ पे 500, लेकिन वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो 3 से डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर वो 3 से डिवाइड नहीं होगी तो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर आपको अगेन प्रॉब्लम होगी। अगर मैं यहाँ पे 500 लेती हूँ तो यहाँ पे मेरा 3000 आ जाएगा, और 3900 में से 3000 माइनस करूँगी तो मेरे पास 900 बचेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया है 500 लिया है, y को चेक कर लो, x अगर मैं y को 500 लेती हूँ तो 3900, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3, तो आपको पता है कि 900 बाय 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 300। अभी तक कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई है। 500 लिया, 400 लेंगे, अगर हम 400 लेते हैं तो 2400 आता है, फिर वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 की जगह आप 3 ले लो, अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा। 1800 भी करेंगे देन भी नहीं आएगा। आप और कोई वैल्यू सोचो, 6 4 3 अब ओके, इफ़ यू टेक द वैल्यू y इज इक्वल टू 200 लेते हैं, y की वैल्यू अगर 200 लिए तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3900 माइनस 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाय 3, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है 2700 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 900। तो x की वैल्यू आपकी 900। Same, we will take the equation 2. With the help of this method, you will find the solution. X to y is equal to 1300. In this case, x यहाँ रखो, 2y को राइट हैंड साइड ले जाओ, 300 माइनस 2y हो जाएगा। Then make table. It's very easy. अगर आप टेबल बनाते हो और सेम वैल्यू भी ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ y लिया है क्या 6, अगर हम यहाँ पे 600 लेते हैं तो वो आंसर क्या आएगा आपका 100 आएगा। y यहाँ पे 500 लो, यहाँ पे क्या आएगा 300 आएगा। अगर y आपने यहाँ पे 200 लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा 900। चेक करो इस इक्वेशन में बोथ द इक्वेशन हैव सेम वैल्यूज। इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ, अगर आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर x को 100 ले रहे हो, y को आप 600 ले रहे हो, तो पॉइंट आपका यहाँ कहीं आएगा x के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर। ये 300 ले रहे हो तो ये 500 आएगा, ये 200 ले रहे हो तो ये अगेन 900 ऊपर चला जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 900 ले रहे हो तो ये 200 कहीं नीचे ही आएगा, तो आपकी ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर लाइन जाएगी। बट सेकेंड केस में भी तो वही लाइन आएगी। इट मीन्स ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है
वो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वेशन का एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें आती है कि हमें इक्वेशन के बहुत, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन पे मैनी सॉल्यूशन होते हैं, आप एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। अगेन मैं वो रिपीट कर रही हूँ वो कंडीशंस, अब हमें उन कंडीशंस की नीड है। कम टू द कंडीशंस, ये हैं आपकी कंडीशंस। देखो कंडीशंस क्यों अप्लाई होती हैं, इस क्वेश्चन के आने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने ये कंडीशंस क्यों ली हैं। देखो अगर आप ग्राफ की बात करो तो ग्राफ के थ्रू आपको कैसे पता चला, जब कोई दो इक्वेशन कहीं कट करती हैं, यूनिकली कट करती हैं, वहाँ जो कोऑर्डिनेट होते हैं आप उसको ही क्या कह देते हो, आपका सॉल्यूशन हो गया। बट इन केस आपकी दो लाइन एक ही लाइन पे कई जगह से कट करते हैं, आपको पता है कि लाइन मेड बाय द मेनी पॉइंट से बनता है, तो ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन हो गए आपके, मैनी सॉल्यूशन हो गए, उन्हीं दो लीनियर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन हो गए। बट एक केस ऐसा भी आता है जहाँ लाइन आपकी कहीं मीट ही नहीं करती, जहाँ लाइन मीट नहीं करती तो वो लाइन्स आपकी क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं, और पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन, देखो कंडीशंस है, जब आपको इक्वेशन गिवन है a1x b1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट कंडीशन, दीज आर द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट आपके, ये भी क्या है, कोफिशिएंट है, ये भी आपकी कांस्टेंट है। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। आप चाहे चेक कर लो ग्राफ के थ्रू, आपको क्या मिलेगी, ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इसका मतलब वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए, क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड, अगर आपकी कोई ऐसे आ जाए a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 आ जाए, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन्स, इट मीन्स बाय कोइंसिडेंटली वो लाइन्स एक लाइन के ऊपर ही आ गई, और अगर ऊपर ही आ गई तो वहाँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। a1 बाई a2 प्लस इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाए, इट मीन्स वो लाइन्स कैसे जाएंगी, आपकी पैरेलल जाएंगी और वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी, इट मीन्स वहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ग्राफिकली तो दिखा दिया, बट हम एल्जेब्रिकली इनको फाइंड नहीं कर सकते। तो कम आप, आई होप आपको ये कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। In question number 3rd, the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg grapes is 300. तो आपको दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है इसका सॉल्यूशन, ग्राफिकली भी और एल्जेब्रिकली भी। तो फर्स्ट वी मेक द इक्वेशन, हमें वही काम करना है, इक्वेशन बनानी है। और आप यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक एप्पल है और दूसरा क्या है, ग्रेप्स है। तो आपको लेट करके चलना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, 1 एप्पल की कॉस्ट है ये, तो आप इसको क्या मानोगे, रुपीज़ x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg, ये 1 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू रुपीज़ y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, 1 kg एप्पल आपके कितने के हैं, x रुपीज़ के हैं। 2 kg एप्पल आपके कितने के हो जाएंगे, 2x रुपीज़ के हो जाएंगे। 1 kg ग्रेप्स उसने खरीदे हैं, तो 1 kg, 1 ही kg खरीदा है, तो 1 kg की कॉस्ट कितनी है, y है, तो यहाँ पे y हो जाएगा। और टोटल रुपीज़ उसने कितने दिए हैं, 160। दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। देखो उसने 4 kg एप्पल लिए हैं, तो आपको पता है कि 1 kg की x है, तो 4 की कितनी होगी, 4x, और 2 kg एप्पल लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2y, और टोटल कितने रुपीज़ देने हैं उसने, 360। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इन दिस केस ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली तो हम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आएगी एल्जेब्रिकली में। तो ग्राफिकली आ जाओ फर्स्ट।
पहले इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। यहाँ से देखो जिसके आगे कोफिशिएंट नहीं है वही वेरिएबल रखो, y को इधर रखो और 2x को उधर ले जाओ, 160 माइनस 2x एंड मेक इट टेबल। काम ही हमारा टेबल बनाने का है। तो यहाँ से पहले आप x की वैल्यू ऐसे ही रखना प्लीज़ कि हमारा सेम ही आए, ऐसा ना हो कि वहाँ पे 1 आ रही है और y की 100 में आ रही है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। आप x की वैल्यू 100 पुट कर सकते हो तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप यहाँ पे 50 पुट करो ताकि वो 100 में रह जाए। अगर आपने x की वैल्यू 50 पुट की है तो ये होगा आपका 160 माइनस 2 इंटू 50, तो वैल्यू आएगी आपकी 160 माइनस 100, 60 वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे 60 पुट कर लो। अगर आप यहाँ पे 60 पुट करते हो तो y हो जाए आपका 160 माइनस 2 इंटू 60, तो 160 माइनस 120 हो जाएगा और ये वैल्यू 40 आ जाएगी आपकी। आप 70 पुट कर लो। अगर आप यहाँ पे 70 पुट करते हो तो y की वैल्यू आएगी आपकी 160 माइनस 2 इंटू 70, तो 160 माइनस 140, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो 10 में ही आ रही है, नो प्रॉब्लम। तो एक आपकी टेबल ये आ गई। सिमिलरली वी मेक दैट अनदर टेबल। दिस इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। छोटा कोफिशिएंट वाला ले लो। 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4y। y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 300 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे आपको 4x तो मेक ए टेबल। आप टेबल बनाओ और वही वैल्यू पुट करो जो x की उसमें गिवन है। आपकी x की वैल्यू y के अपने आप आती जाएगी। x की वैल्यू 50 पुट करो, फिर 60 पुट करो, देन 70 पुट करो। अगर आप यहाँ पे 50 पुट करते हो तो 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, और 300 को 200 से माइनस करोगे 100 आएगा। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 60 आएगी। चलो पुट कर लो। y आपने x की वैल्यू क्या लिया, 50 लिया, तो 300 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2। अपने दिस इज y इज इक्वल टू 300 माइनस 200, तो आंसर आएगा आपका 100 बाई 2, तो 50 वैल्यू आ जाएगी आपकी y की। तो y की वैल्यू यहाँ 50 पुट कर लो। अगेन हमने x की वैल्यू ली है 60, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 300 अगर हम 60 से करते हैं तो ये आएगा आपका 240 डिवाइडेड बाई 2। अगर 360 बाई 2 तो आंसर आएगा 30। तो पुट वैल्यू है 30। अगेन हमें y फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 70 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 300 माइनस 280 बाई 2, तो ये आंसर आया आपका 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो हमने दोनों टेबल बना ली। हाउ टू रिप्रेजेंट इन ग्राफिकली देख लो। ग्राफिकली देखो, अगर x की वैल्यू 50 है, मान लो 50 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू 60 है, तो पॉइंट यहाँ पे जाएगा। x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू आपकी 40 है, पॉइंट आपका नीचे आएगा। x की वैल्यू आपकी 70 है, ये और छोटा हो गया 20 है, तो आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। एक लाइन फर्स्ट इक्वेशन की, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट की है। तो और सेकेंड टेबल चेक करो, x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू भी 50 है, मतलब इससे तो कहीं नीचे है वो। x की वैल्यू 60 है तो ये 40 थी, ये 30 है, तो इससे कहीं नीचे है। ये 70 है, ये 20 थी, और ये क्या है आपकी 10 है। इट मीन्स इन दिस केस आप चेक कर लो कि दोनों लाइनें आपस में क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये क्या है आपका नो सॉल्यूशन। तो एल्जेब्रिकली तो हम इसको कर नहीं सकते, बट ग्राफिकली हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के क्या है, नो सॉल्यूशन है, ये कहीं भी मीट नहीं करेंगे, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। I hope you understand the equation 3.1. This is your exercise 3.1 complete with the help of graphically or algebraically. Good day.